morning. Good morning, sir. Fine. We're starting with the chapter of rotational mechanics of DC Pandey, book 2, number 12. The chapter 12. The name of the chapter is Rotational Mechanics. Our HSC, it is also termed as rotational motion. Now, I hope you all must have seen the first lecture. Now, in this chapter, you all have to see each and every lecture which is uploaded on the Google Classroom. For next time, we'll be seeing lecture number 2 for better understanding. Okay. So the topic which I'll be doing today, you are aware of that topic, is called as moment of inertia. Okay. Moment of inertia is the resistance to rotational motion. It is the resistance to rotational motion. The whole discussion was done in the theory. You all must be knowing. Can I say it is analogous to mass in linear motion? Whatever role mass plays in linear motion, moment of inertia plays in rotational motion. We must be knowing all these things. Similarly, we have studied moment of inertia for a single particle, double particle, and system of particles. So for a single particle, this is the particle of mass m, and suppose it is located at a distance of r from any axis of rotation and is revolving this way. It's going. So can anyone tell me what is the moment of inertia about this axis? What is the formula for a single particle? Does anyone know? Hello? Can you all hear me? What is moment of inertia for a single particle? It is what? Mass into distance square from the axis of rotation will become m into r square. Right? Moment of inertia for a single particle. For a system of particles, there are n number of masses m1 situated at a distance of r1, m2, r2, mn, rn. So moment of inertia of this system of particles about a given axis is m1 r1 square plus m2 r2 square plus dot 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 mn rn square. Moment of inertia of a system particles can also be written as summation of mi ri square, where I is ranging from 1 to n, and the unit will become kg meter square. Right? Hello. Hello, Yes. beta. Okay, ये चीज है. Now third, which I am dealing with, is rigid body. Rigid body means there is any rigid body which is rotating about a given axis of rotation. तो यहाँ पर
what do? I take a small particle dm situated at distance of r. So small moment of inertia of this particle will become dm into r square. But I don't need di, I need I of the whole body. So I will become integration of dm r square. This I'll teach you when continuous bodies will come. Okay. This is for a rigid body. After this, we need to know a table. What is the table? सबसे पहले for a ring. Can anyone tell me what is moment of inertia for a ring about an axis passing through center of mass? Come on, please help me out with this thing. Hello? mr square. mr square. Moment of inertia for a disk about an axis passing through center of mass. Fast, come on. mr square by 2. mr square by 2. Moment of inertia for a solid sphere about an axis passing through center of mass. What is the answer? 2 by 5 mr square. Hollow sphere. It is 2 by 3 mr square. 3 mr square. Similarly, if I tell you what is a solid cylinder, it is like a disc. Like a disc only, na? Hollow cylinder is like a ring. You should know this thing. Without this, we can't do anything. This is all about moment of inertia. One more thing which we need to know for a solid cylinder. If it is about this axis, it will be m L square by 12 plus R square by 4. Solid, huh? If it is hollow, it will be m L square by 12 plus R square by 2. This we need to remember. Okay. Similar thing, one more thing which we need to remember is for a plate about an axis passing center. Suppose this is L and this is breadth. Moment of inertia will become m L square plus breadth square divided by 12. Okay. Similarly, for a rod, moment of inertia about this axis will become ml square by 12. This is the rod in uniform. ये सब चीजें आपको आना चाहिए. I hope you all must have seen the videos also, so you all will understand what's happening. Okay. Fine. Now, on the basis of this, we have two theorems also. This is moment of inertia of the axis passing through center of mass. That is IC. This is all a IC only. This is about this axis. The second thing, we have something called as parallel axis theorem. What is parallel axis theorem telling you? That if there is a rigid body and if I know that IC, and if I want to find moment of inertia about any random point O, where the distance between them is h,
the moment of inertia about any point O will become moment of inertia per center of mass plus mass of the body and the square of the distance between the two parallel axes. This is very important. Similarly, if we have perpendicular axis theorem also, so if there is a rigid body and there are two axes which are lying in the plane, and if there is an axis which is perpendicular to the plane, the z axis is perpendicular and x and y are lying in the plane, moment of inertia about any perpendicular axis is moment of inertia of two axes lying in the plane, and all are passing through the same point where the perpendicular axis is cutting the lamina. This all things we have done it in our theory. Hello, can you all cope up? What am I telling you all? Yes, sir. Hello. Yes, sir. ये सब चीजें की हुई है. If you see the video lecture, ये सब चीजें का time बच जाएगा. If you don't see the video lecture, again you will be going back to the theory. That's why I told you to see the video lecture so that these things will be revised again and again. So numericals fatafat we can do and time okay will be saved rather than doing this theory again and again. So please watch the lecture. अभी आपने lecture 1 देखा रहेगा. अभी next time Wednesday को lecture के पहले you can see lecture number 2 and lecture number 3. So it is very important. Now I'll do some applications of perpendicular and parallel axis theorem. Okay. Applications of perpendicular and parallel axis theorem. So if I take a ring, चलो बताओ IC क्या होता है रिंग का? MR square होता है, बराबर है क्या? Hello? Yes, sir. If I need moment of inertia about an axis passing through the tangent, इधर चाहिए, वो बोलते हैं I tangent perpendicular, ये IC है. Can anyone tell me which theorem will I apply? Hello? भाई कौन सा theorem I tangent perpendicular मांगता है तो क्या करने का? Can I say I tangent perpendicular will become IC plus mass into distance square between the axes, that is R only na, H is R and IC is MR square. I am very sorry, यहाँ पर एक mistake हो गया है. This is yes or no? ये हो जाएगा MR square plus MR square will become 2MR square. Are you understanding? Hello बोलो. Yes, sir. इसको बोलते हैं tangent perpendicular to plane. अच्छा, if I need about diameter then क्या करेंगे? यहाँ पर ऐसे है, this is IC. Can I say this is your ID? And this is also ID. Which axis theorem will I apply? Come on, man, fast, Baba, please. Can I say IZ is equal to IX plus IY? IC will become ID plus ID. So ID will become IC by 2. IC is MR square by 2. By 2 ये नीचे हो जाएगा, so ID मिल गया. Similar thing you can tell me for tangent parallel to plane. अगर ये रिंग है and if I need about a tangent parallel to plane तो यहाँ पर diameter आएगा because this is ID, this is I tangent parallel, distances are. So when I say I tangent parallel will become ID plus mass into distance square. बस ID यहाँ से लेना है, that will become MR square by 2.
plus mr square will become 3 by 2 mr square. This is I tangent parallel. Okay, so I can write shortcut. देखो IC अगर पता रहेगा तो IC तो बहुत इंपॉर्टेंट है. What is I tangent perpendicular का shortcut? It will become IC plus mr square. What is ID का shortcut? It is IC by 2. And what is I tangent parallel का shortcut? It is ID plus mr square. हेलो बोलो, yes or no? Yes, sir. आपको ये पता होना चाहिए, तो ये सब आप कर सकते हो. ठीक है यार. हेलो, वैसे ही डिस्क है, सॉलिड स्फीयर है, हॉलो स्फीयर है, उसके लिए आप कैलकुलेट कर सकते हो. यू कैन सी द वीडियो दैट इज प्रूव्ड ओवर देयर. ओके, नाउ बाबा यू कैन डू फॉर डिस्क, सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर ना, किया भी तो है हम लोग ने. यस और नो? Yes, sir. अब मुझे एक बात बताओ. अच्छा, एक कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स है दैट आई नीड टू गिव यू, बिकॉज हमको नई चीजें पढ़नी है. वही बार बार वही चीज जो पढ़ी हुई है, दैट टू यू ऑल कैन आल्सो डू. ओके, पैरेलल एक्सिस थ्योरम is applicable for any type of rigid body. While perpendicular axis theorem is valid for two-dimensional lamina. Because we are talking about three axes now. One is perpendicular axis, which is there. Okay. अच्छा, third. मेरी बात सुनो. सपोज ये एक रॉड है. सपोज इस एक्सिस पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया मांगता है तो कितना लेंगे? हेलो, अगर ये एक्सिस पर ही घुमा रहा हूं मैं रॉड को, तो व्हाट विल बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया? 0 रहेगा ना. हेलो, बिकॉज m r स्क्वायर है ना, बट देयर इज नो r, इट इज लाइंग ऑन द एक्सिस ना. हेलो, यस और नो? Yes, sir. अच्छा, सपोज इसकी x दूरी पर आई टेक अनदर एक्सिस, अभी इधर चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसको पकड़ेंगे आई नॉट. कैन आई से यहां पर अगर मैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाऊं, सो आई नॉट विल बिकम आई, दैट इज इसका आई तो 0 है, प्लस मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर. तो ये याद रखना, आई नॉट in this parallel axis theorem will become mx square. This is very much used in the exam and it is very simple also. Okay, एक बहुत important concept which I am teaching you all. एक डिस्क है, suppose mass m है, radius r है, and if I tell you what is the IC, you will tell me it is mr square by 2. बराबर है ना? Suppose ये डिस्क की जगह पे I take a small part, same axis, इसका भी mass m है and radius r है. The moment of inertia about this axis will also be mr square by 2. प्रोवाइडेड अगर ये एक सेक्टर है कोई भी थीटा का और वो पूरा डिस्क है, दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द गिवन एक्सिस विल बी द सेम. यू विल टेल मी सर व्हाई? यू विल टेल मी सर व्हाई? सपोज अभी इसका प्रूफ करते हैं. अच्छा, कोई बता सकता है ये, दिस इज, कैन आई से दिस इज द nth पार्ट? तो पूरा अगर मैं इसका एक डिस्क बनाऊं, तो व्हाट विल बी द मास ऑफ दैट डिस्क? हेलो,
यार पूरा अगर मैं इसका एक डिस्क बनाऊंगा तो व्हाट विल बी द मास ऑफ द डिस्क? to n. हाँ mn, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दैट एक्सिस हो जाएगा nm r²/2 ना, सही है क्या? हेलो, Yes, sir. तो व्हाट विल बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द nth पार्ट? दिस इज फॉर द फुल डिस्क ना बाबा. व्हाट विल बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द nth पार्ट? वही डिवाइड बाय n कर देंगे ना हम लोग, तो डिवाइड बाय n कर देंगे तो वही तो आ जाएगा. देखो, हेलो, यस और नो बाबा? Yes, sir. तो वही आता है. बेसिक कॉन्सेप्ट हमको याद रखना है, दोनों का मास सेम होना चाहिए एंड रेडियस तो सेम ही है. ठीक है, ये उसका प्रूफ है. ओके, वीडियोस अगर आप देखेंगे तो और समझ में आएगा आपको. ओके, एंड वन थिंग नाइस अबाउट दैट वीडियो व्हिच आई हैव सेंड इज introductory exercise is also solved पूरा. Okay, so whatever I'll be solving today, that is also solved in the videos. अगर आप फटाफट बैठ के 2-3 लेक्चर देखते हो तो okay, you can complete the whole chapter on your own also. But it is necessary to see the video. Now please follow the instructions of the teacher, हाँ बेटा, because ये chapter important है. Now I am starting with the solving part. अच्छा, एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करना है कॉल्ड एज रेडियस ऑफ गायरेशन. रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है? सपोज देयर इज अ रिजिड बॉडी. ये रिजिड बॉडी है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है. जो भी रहेगा, रिंग है, डिस्क है, सॉलिड स्फीयर है. व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन? कैन यू सी द ग्रीन कलर स्लाइड नाउ? व्हाट एम आई राइटिंग? दिख रहा है ना आप लोग को? हेलो. Yes, sir. रेडियस ऑफ गायरेशन कॉन्सेप्ट ये है कि ये मास एम है, तो आपने क्या किया, यही एक्सेस रखा, इस मास एम को आपने एक पॉइंट बना दिया, पॉइंट मास बना दिया, and you are concentrating this point mass at a distance k. So can anyone tell me what will be the moment of inertia of this point mass, single particle with respect to this axis? K कितना रहेगा? square. mk². और कह रहा है कि ये k ऐसे होना चाहिए, this k should be such that this I and this I should match. Hello, are you getting it? क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? हेलो, मतलब you are converting this rigid body into the concept of what? Above what? Single particle. Single particle. ये, ताकि ये आए और पीछे वाले आई का वैल्यू सेम हो जाए. तो कहना इसे आई का वैल्यू मिलेगा के mk², तो k का वैल्यू आपको मिलेगा √i/m. तो आप लोग सिग्निफिकेंस क्या बताएंगे k का? कि k इज प्रोपोर्शनल टू √i. तो जिसका k ज्यादा है, अगर ये पार्टिकल दूर लोकेटेड है फ्रॉम द एक्सिस, तो जिसका k ज्यादा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा मतलब रेजिस्टेंस ज्यादा. हेलो, व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया? रेजिस्टेंस टू एंगुलर मोशन ना बेटा. हेलो, यस और नो? Yes, sir. तो जिसका k ज्यादा उसका i ज्यादा, जिसका k कम उसका i कम, जिसका k 0 उसके पास i 0 रहेगा. मतलब ओके, देयर विल बी नो रोटेशनल मोशन ओवर देयर, देयर विल बी ओनली लीनियर मोशन. ओके, तो यू शुड बी कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग इन दिस थिंग. अच्छा, एक बात मैं कहना भूल गया हूँ. mi डिपेंड्स ऑन व्हाट? एकदम फेमस क्वेश्चन है, थियरी में भी आता है. I told you it depends on distribution of mass.
with respect to axis of rotation. Okay. If the mass is located away from the axis of rotation, moment of inertia will be more, and it is difficult to start and difficult to stop. याद है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम रहेगा तो इट इज इजी टू स्टार्ट एंड इजी टू स्टॉप. बाबा याद है थियरी सबको? अगेन इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग. इट आल्सो डिपेंड्स ऑन मास ऑफ द बॉडी, बट खाली मास नहीं है. इट डिपेंड्स ऑन ओरिएंटेशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन. कौन से एक्सिस पर रोटेट कर रहे हो आप, एक्स पर, वाई पर, जेड पर. तो एवरीथिंग विल डिपेंड ऑन मोमेंट ऑफ मेकअप मोमेंट ऑफ इनर्शिया. ओके, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है तो रेजिस्टेंस ज्यादा है, and it is difficult to start the motion, rotational motion, and difficult to stop. And moment of inertia अगर कम होगा, easy है to start and easy to stop. Easy to stop. Hello, Baba, tell me. Hello, yes or no बेटा? Correct है ना? Yes, sir. तो अभी हम लोग सम्स की तरफ आते हैं. एक्चुअली आई वाज प्लानिंग कि भाई एक टाइम 2 इंट्रोडक्टरी एक्सरसाइज करेंगे हम लोग. सो नेक्स्ट टाइम से आप लोग स्ट्रिक्टली थियरी देख के आएंगे, एंड आई विल बी रिवाइजिंग अ बेसिक थियरी आल्सो, बट आई वांट यू ऑल टू वॉच द थियरी प्रॉपरली, एंड देन वी विल बी सॉल्विंग द सम्स बिकॉज यू ऑल नो द चैप्टर. आई एम इरेजिंग दिस, you can start with the sums. Okay, find the radius of gyration of a rod of mass m and length 12 about an axis passing through one of the end and perpendicular to the length. Okay, ध्यान देना, एक रॉड है, length is 12, mass is m. Can anyone tell me what is moment of inertia about the end axis? क्या है फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला क्या है moment of inertia about the end of the rod? हेलो, फॉर्मूला तो आना चाहिए ना बेटा. हेलो, for a rod about an axis passing through the end, does anyone tell me what is moment of inertia about the center? अरे बाबा बोलो, ml square by 12. And what is moment of inertia about this axis? किसी को याद है? हेलो 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 हेलो, yes or no? ठीक है, ये आना चाहिए ना भाई, ये आता है सब लोग को. दिस इज इंपॉर्टेंट. मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एंड इज ml स्क्वायर बाय 3. m कितना m है, l कितना है 2l स्क्वायर बाय 3. I'll become 4 ml square by 3. This is I, but I don't need I. I need radius of gyration, that is k. Can I say I is nothing but mk square? m और m तो cancel हो जाएगा. k will become 2l by root 3. Hello. So what do you mean by this? That k about the end is 2l by root 3. मतलब क्या, अगर आप रॉड को एक पॉइंट में बना दो m, and if you place it at a distance of k, that is 12 by root 3 from this axis, it will give you the same moment of inertia as that of the entire body. Hello, did you understand the concept? Hello, Hana, bolo beta. Yes or no? Yes, sir. ये चीज है, तो ये याद रखना है, ml square by 3. ये अबाउट द सेंटर होता है ml square by 12 होता है, एंड अबाउट द एंड होता है ml square by 3. आपको याद करना पड़ेगा. दिस इज इंपॉर्टेंट. अरे भाई, am I going fast? बाबा यू टेल मी, वरना एंड ऑफ द लेक्चर पता चलेगा एवरीथिंग वेंट फास्ट. Am I going fast or slow or it is proper? हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रहा है बेटा आपका. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो. प्रॉपर है ना? हाँ, एंड ऑफ द Yes, चैप्टर sir. पता चला कि सब फास्ट है, वो फिर से कराना पड़ेगा. फिर प्लीज टेल मी इफ आई एम गोइंग फास्ट. हाँ,
हाँ, आपका थोड़ा कंट्रीब्यूशन बेटा इसमें रहेगा, 25%, 30% आपको वीडियो देखकर आना पड़ेगा, वरना ये चैप्टर चलता ही रहेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं, देखते हैं। A mass 1 kg is placed at 1, 2,0. Another mass 2 is placed at 3, 4,0. Find the moment of inertia of both the masses about the z-axis. Okay. So they want moment of inertia about the z-axis. इधर देखो, ये x है, ये y है, और ये z-axis है। ये z-axis है ना हमारा। अच्छा, पहला वाला मास किधर है? 1,2 पर। 1 kg is placed at 1,2. 2 kg is placed at 3,4. But we are not interested from distance from, we want to find moment of inertia about z-axis. So moment of inertia about z-axis will become, particle system है तो m1 r1 square plus m2 r2 square. What is the distance from the z-axis? Not x or y. What is the distance of पहले वाला from the z-axis? Can anyone tell me? ये z-axis है तो ये distance कितना होगा? ये r1 रहेगा ना, वैसे ये r2 हो जाएगा। ओके, z-axis है तो m1 1, r1 will become क्या होगा यार? 1,2 का वो चाहिए ना मुझे, तो 1 square plus 2 square. हाँ, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ये राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। दूसरा वाला रहेगा 2, यानी ये स्क्वायर है तो ये स्क्वायर हो जाएगा, and this will be root of 3 square plus 4 square. इधर ये हो जाएगा, रूट 5 का स्क्वायर 5 होता है, 5 स्क्वायर will become 25. हेलो, यस और नो? Yes, sir. ये हो जाएगा 55 kg मीटर स्क्वायर about z axis. Because they have given you distances of x and y coordinate. We are interested from the z axis. So actually we are interested from the origin, because z axis passes through the origin. ठीक है? They are actually asking moment of inertia about the origin. क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं हम लोग। Four thin uniform rods of mass m and length are joined to make a square. Find the moment of inertia about any side of the square. एकदम easy है। And length is L, mass is m and length is L. अरे का I want to find moment of inertia about any side, तो ये साइड पर निकाल देता हूँ moment of inertia. Can I name the rod as 1, 2, 3 and 4? तो 1 पहले वाला रॉड अगर हम पकड़ता है 1 नंबर का, तो ये हो जाएगा, एक्सिस इधर है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो 0 हो गया। सेकंड वाले नंबर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सेकंड वाला जो नंबर है, एक्सिस इधर है, तो इट विल बी ml स्क्वायर बाई 3। सिमिलरली 4 नंबर भी जो है उसके लिए भी इट इज ml स्क्वायर बाई 3। एंड 3 नंबर वाले के लिए कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, कोई बता सकता है? एक्सिस इधर है, ये अभी सिखाया था थोड़ी देर पहले। हेलो बाबा, मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर ना, ml square. हाँ, बिकॉज उसका खुद का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो 0 हो जाएगा ना, तो सिर्फ ये। और अभी टोटल नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा? अबाउट will become I1 plus I2 plus I3 plus I4. 0 plus ml square by 3 plus ml square by 3 plus ml square.
whatever answer you get, that is the answer. Getting it or not? Simple enough. So this is introductory exercise which is there. Question number 3 is done. We'll come to question number 5. अच्छा, question number 4 भी देखो. About what axis uniform cube moment of inertia is minimum? Always remember, moment of inertia is minimum about center of mass. Any damn shape. Because कोई भी दूसरे moment of inertia पे जाएगी तो it is IC plus mass into distance square ना. हेलो 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 बाबा, समझ में आ रहा है क्या? तो ये तो ऐड करना पड़ेगा ना एक्स्ट्रा. कैन आई से दिस विल बी मिनिमम. ओके, एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर अ क्यूब याद रख लेना. यू रिमेंबर फॉर अ क्यूब, अभी से कहा था ये लेंथ पकड़ लो एल और इसको भी पकड़ लो एल. मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर द क्यूब वी हैव डन इट. अभी किया था ना थोड़ी देर पहले, प्लेट किया था कि नहीं? इट वाज m by 12 l square plus breadth square. Breadth is also l only ना. ये हो जाएगा ml square by 6 IC for a cube. याद रखना, ये चीज काम लगेगी यार. ठीक है, ओके. Question number 5. There are 4 solid balls with the centers at the 4 corners of a square of side A. So there is a square. Side A. 4 solid balls are there. एक solid ball है, इसका mass m है, radius r है. वैसे ही ऐसे 4 है. Okay, find the moment of inertia of the system about one of the side of the square and one of the diagonal. मैं one of the side कर लूंगा, या तो one of the diagonal मैं कर लेता हूँ. सेकेंड पार्ट आप लोग साइड तो अभी थोड़ी देर पहले किया ही था. वन ऑफ द डायगोनल आई विल डू. तो डायगोनल मैं ये ड्रॉ करता हूँ. I want to find moment of inertia about this axis. ठीक है ना? अच्छा चलो अभी इसको है ना तोड़ेंगे हम लोग. 1 2 3 4. Can anyone tell me what is moment of inertia about one solid sphere है? बाबा बोलो. ये IC आएगा ना? हेलो, दिस विल बी IC ओनली ना? Yes, sir. by 5 m² Similarly, ये फर्स्ट है, I1 बोलेंगे इसको. I1 is also 2 by 5 m² passing through the center of mass. Can I say it will match with 3 also? ये तो axis है. So I3 will become 2 by 5 m². अब मजा आएगा. 2 या 4 तो दोनों के लिए सेम ही है. अच्छा 2 के लिए क्या करना है? 2 इधर है और हमारा एक्सिस इधर है और ये एक्सिस पर मांगता है हमको. तो ये रहेगा I0, ये हमारा है IC और डिस्टेंस बिटवीन देम इज h. बोलो भाई. हेलो. Yes, sir. I0 क्या हो जाएगा? IC प्लस मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर. IC तो हमको मालूम है 2 by 5 m². मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर. कोई बता सकता है ये डायगोनल जो होता है, सपोज ये L है, सॉरी A है और ये भी A है, तो डायगोनल कितना रहेगा? A√2. √2a होगा पूरा. मुझे तो आधे में इंटरेस्ट है ना. कितना हो जाएगा? A by root. A by √2 हो जाएगा. इतना तो आता है ना सबको? हेलो.
Yes, sir. a by root 2. So mass into distance is a by root 2 का स्क्वायर. a by root 2 का स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर by 2. ये I नॉट है, मतलब इसको नंबर देंगे I नॉट मतलब I2. And can I say I2 and I4 are the same only? रेप्लिका है ना. हेलो, जैसे I1 और I3 सेम था वैसे I2 and I4 भी सेम है. अब हमको क्या करना है, अब हमको I नेट फाइंड करना. तो I नेट क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4. कुछ नहीं करना है, डबल डबल कर देना. तो ये I1 I2 तो सेम है, तो 2/5 प्लस 2/5 4/5 होता है. ये 2/5 mr square plus I2 is 2/5 mr square plus this is also 2/5 mr square plus ma square by 2 into 2. हेलो बोलो, यस और नो. अरे भाई सही तो है, Yes, कह sir. रहे हैं ना. ये जो भी आंसर आएगा दैट यू ऑल आर स्मार्ट इनफ, यू ऑल कैन कैलकुलेट द आंसर. कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, ठीक ना. और नंबर रहेगा तो नंबर रहेगा, कोई बड़ी बात नहीं है. एंड वन ऑफ द साइड यू कैन कैलकुलेट. आई हैव डन इट फॉर अ डायगोनल एंड दिस इज ऑल सॉल्व्ड इन द वीडियो आल्सो. यू कैन रेफर अगर आपको नहीं आ रहा है तो. क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं. क्वेश्चन नंबर 6. थोड़ा सी अगर आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है ना तो ये चैप्टर एकदम इजीली निकल जाएगा. क्वेश्चन नंबर 6. अब यहाँ पर मजा आएगा. देखो ये कह रहा है नॉन यूनिफॉर्म रॉड है. यूनिफॉर्म रॉड के लिए तो हमने फाइंड कर लिया ना, ml²/12 और ml²/3. अब ये नॉन यूनिफॉर्म रॉड है ऑफ मास m and लेंथ 12. तो देयर इज अ नॉन यूनिफॉर्म रॉड, इसका मास तो m है और लेंथ 12 है. एंड द मास पर यूनिट लेंथ इज mx. मतलब यहाँ पर x0 है, यहाँ पर xl है, x2l है. और यहाँ पर जैसे आप दूर जा रहे हैं ना, मोमेंट कितना है मास पर यूनिट लेंथ बेटा, कितना है मास पर यूनिट लेंथ को मैं लैम्बडा पकड़ता हूँ. लैम्बडा, लैम्बडा इज mx. मतलब जैसे आप x दूरी पर जाएंगे वैसे मास बढ़ता जाएगा. तो वेयर इज द मैक्सिमम मास लोकेटेड बाबा, हेलो यार बोलो ना, वेयर इज द मैक्सिमम मास लोकेटेड एट दी एंड And ना, एंड. ये सबसे हेवियर पार्टिकल है. एंड वेयर इज द लाइटेस्ट पार्टिकल, यहाँ पर ना, बिकॉज x0 है तो लैम्बडा 0 रहेगा, तो दिस विल बी लाइट. बराबर है क्या, हेलो. ये चीज है. तो नॉन यूनिफॉर्म रॉड है एंड x इज मेजर्ड फ्रॉम a. तो ये a पकड़ लेते हैं और ये b पकड़ लेते हैं, ठीक है ना. फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड अराउंड एक्सिस पासिंग थ्रू a एंड थ्रू मिड पॉइंट. तो दो चीज पूछी है यहाँ पर, थ्रू a एंड थ्रू मिड पॉइंट. मैं दोनों चीज आपको सिखाऊंगा. पहले हम लोग ये पार्ट करते हैं. ओके, पार्ट ए, पार्ट 1. अबाउट ए मतलब अबाउट एन एंड, अबाउट एंड फाइंड करना है, ठीक है, इजी है. स्टेप नंबर 1 मैंने आपको बताया था, जब नॉन यूनिफॉर्म चीजें होती है तो गो टू x एंड टेक dx. मैंने ये रॉड लिया, ये पॉइंट ए पकड़ा बिकॉज ये हमारा ओरिजिन है. आई गो टू x एंड आई टेक एन एलिमेंट dx. बराबर है क्या. स्टेप नंबर 2, mass of element is dm. Will be mass per unit length into its corresponding length. मास पर यूनिट लेंथ लैम्बडा जो दिया है क्वेश्चन में mx दिया है, तो ये हो जाएगा mx dx. ओके. स्टेप नंबर 3, mi ऑफ द एलिमेंट. खाली एलिमेंट की तरफ देखो आप, ये टुकड़े की तरफ देखो. ये तो एक सिंगल पार्टिकल है ना. सिंगल पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस कितना हो जाएगा, di विल बिकम, इसका खुद का मास, इसका मास इज dm into distance square. So can I say di will be dm, dm यहाँ से उठा लो, mx dx into x square. तो ये हो जाएगा mx cube dx
ये तो ये टुकड़े का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है. These all small टुकड़ास are ranging from where to where? हेलो. 0 to 12. 0 to 12. So स्टेप नंबर 4 रहेगा. ये स्टेप्स फॉलो करते जाना है मैकेनिकली, आपको आंसर आ जाएगा. तो ये डी का इंटीग्रेशन तो आए होता है, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एम एक्स क्यूब डी एक्स 0 to 12. तो ये हो जाएगा एम एक्स 4/4 0 to 12 m/4 12 raised to 4. हेलो. सही कर रहा हूँ ना मैं? कुछ गलती हो गई क्या? हेलो. यस और नो? ये छोटा है मैं ना, सॉरी, ये छोटा है. कितना हो गया? हेलो. Yes, sir. अच्छा ठीक है. अब ये चीज तो सही है, ये चीज कोई इश्यू ही नहीं है, इजी है ये चीज. ओके. अब कोई मुझे एक बात बता सकता है कि अच्छा व्हाट इज छोटा एम स्टैंड फॉर एक्चुअली? छोटा एम क्या है? हाँ ठीक है, ये चीज ओके, दिस इज ऑल डन. 4 ml ये मिल जाएगा आपको. mx into, okay fine, so this is how you do in terms of small m, huh? In terms of small m. मेरी बात सुनो बेटा. अब सपोज आई डोंट नीड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एंड में नहीं चाहिए, आई नीड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर. तो फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप से मैं फिर से कर लेता हूँ. अबाउट द सेंटर, दिस इज पार्ट 1 इज ओवर. नाउ आई विल डू पार्ट 2. पार्ट 2 क्या बोल रहा है? आई नीड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर पे चाहिए. कैन आई से एक रॉड लो, सेंटर पे ओरिजिन पकड़ो. स्टेप 1 क्या बोलेगा? गो टू एक्स, ये हमारा ओरिजिन है. गो टू एक्स एंड टेक डी एक्स. आई वेंट टू एक्स एंड आई टूक एन एलिमेंट डी एक्स. बराबर है? ओके. मास ऑफ द एलिमेंट इज dm. dm will be mass per unit length into length, that is mx dx. बराबर है क्या? हेलो. Yes, sir. ये भी क्लियर है. स्टेप 3, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस स्मॉल एलिमेंट विल बिकम इसका खुद का मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन. ये हो जाएगा एम एक्स क्यूब डी एक्स. वही चीज जो हम कर चुके थे. स्टेप नंबर 1 2 3 तो सेम है. अब आप एक बात बताओ, लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक लेना है? अगर मैं इंटीग्रेट करूँ इस चीज को, एम एक्स क्यूब डी एक्स, बेटा लेंथ कितना है इस चीज का? 0 to लेंथ L. ये 0 है, 2l है एक्चुअली इसका लेंथ. तो ये 0 पकड़ रहे हैं ना हम लोग. तो ये हो जाएगा +l और ये हो जाएगा -l. आर यू अंडरस्टैंडिंग? हेलो. Yes, sir. Yes, sir. अगर ये लेंथ l का होता तो मैं l/2 और -l/2 लेता. तो इट डिपेंड्स ऑन वेयर यू आर टेकिंग द ओरिजिन, दैट इज प्लेइंग अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल. तो यहाँ पर यू आर इंटीग्रेटिंग दिस फ्रॉम -l to +l. हेलो. तो ये m x 4/4 हो जाएगा m/4. हेलो. यस और नो? l/4 माइनस ऑफ -l/4. यस और नो? हेलो. क्या होगा? इसे आएगा ना? 0. नहीं 0 नहीं होगा. 0 कैसे होगा?
एक मिनट, इवन फंक्शन ऑड फंक्शन जीरो नहीं होना चाहिए यहाँ पर. So go to x and take dx, but x is measured from where? That is very important. We need to take that thing. एक मिनट. क्वेश्चन में क्या बोला है? क्वेश्चन में बोला है x is measured from a. x is measured from a. ओके ठीक है. तो यहाँ पर थोड़ा सी मॉडिफिकेशन आएगा वरना आपको आंसर में दिक्कत हो जाएगी. ये मैं रब कर रहा हूँ. I'll do it again. एक चीज हम भूल गए थे, x is measured from a. यहाँ पर पार्ट 2 अगेन ये रॉड है. ओके. I want to find moment of inertia about this axis. ये a है और ये b है. स्टेप नंबर 1 वही रहेगा, go to x and take dx. But x is measured from where? क्वेश्चन में दिया हुआ है. हेलो, x is measured from here. सही है ना? हेलो. Yes, sir. हाँ, हम वो चीज मिस कर रहे थे. ओके, मास dm कितना रहेगा? मास पर यूनिट लेंथ वही है इनटू लेंथ. बिकम m by l इनटू नहीं mx dx हो जाएगा. ये मिल गया. ओके. स्टेप नंबर 3 अभी ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना. मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दैट रिस्पेक्टिव एक्सिस, ये एक्सिस पे मांगता है, विल बिकम इसका खुद का मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर. तो ये डिस्टेंस कितना है? मेरे को मालूम है ये एल है ना, ये एल है ना, ये आपको पता रहेगा ना बेटा. हेलो, ये x माइनस एल हो जाएगा ना, बिकॉज ये तो एल है ना. हेलो 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 हेलो, आर यू अंडरस्टैंडिंग? Yes, sir. ये एक चीज x माइनस एल द होल स्क्वायर मास इनटू डिस्टेंस विल बिकम m x dx इनटू x माइनस एल द होल स्क्वायर. अब स्टेप नंबर 4, इंटीग्रेशन विल बी फ्रॉम 0 to l ओनली, बिकॉज मेरा ओरिजिन यही है. x इज मेजर फ्रॉम हियर ओनली ना, देखो ना. तो बराबर है क्या? हेलो, Yes, sir. इंटीग्रेशन वही रहेगा. ये आई बना, ये बनेगा m x dx. तो ये x dx x minus l the whole square into dx, and integration will be from 0 to l. यहाँ पर हम लोग देखते हैं कैसे करेंगे. ये हो जाएगा m x minus l the whole square will become x square minus 2xl plus l square dx. if I multiply this inside, इंटीग्रेशन बाकी है 0 to 2l. m कितना हो जाएगा बेटा? ये x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर l प्लस x इंटू dx, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2l. तो भाई ये तो कर चुके हैं ना आप लोग, इंटीग्रेशन करते हो ना. हेलो, Yes, sir. ये तो ठीक है ना. ये हो जाएगा m x 4/4 माइनस 2l x क्यूब बाई 3 प्लस x स्क्वायर बाई 2 0 to 2l. हेलो, ये हो जाएगा m 16 So l last term is into L square. इंटू एल स्क्वायर. ओके, तो x इंटू एल स्क्वायर हो जाएगा. बराबर है क्या? हेलो, Yes, sir. सही है ना? ये हो जाएगा 16l 4/4 माइनस 2l. 12 will become 8l cube by 3 plus 4l square into l square by 2. इसका वैल्यू निकालो, you will get the resultant answer. Did you understand how to do? हेलो,
यहाँ पर कैच ये था, ये सब इजी है, यहाँ पर कैच सिर्फ ये था कि x इज मेजर्ड फ्रॉम, हेलो बाबा बोलो, From A. फ्रॉम ए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसके बिना सम रॉन्ग हो जाएगा। ओके, बाकी ये इंटीग्रेशन आप लोग खुद कर सकते हो, कोई इसमें कोई दम नहीं है, ठीक है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड। हेलो बाबा, हाना बोलो। Yes, sir. हम्म, अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पर आता है। If two circular discs of the same weight and thickness are made from metals having different densities, मतलब दोनों का रो अलग है, which disk if either having larger moment of inertia, which disk if either will have larger moment of inertia, मतलब दोनों में से कौन सा ओके मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका ज्यादा है। अच्छा, यहां पर दे रहा है कि सेम वेट और सेम थिकनेस है। वेट मतलब जी तो सेम ही रहेगा, तो m1 इज इक्वल टू m2। हेलो हेलो, Yes, sir. मास को लिख सकते हैं डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, एंड वॉल्यूम ऑफ द डिस्क होता है पाई आर स्क्वायर एच, या पाई आर स्क्वायर थिकनेस भी बोल सकते हैं, थिकनेस इज हाइट ओनली ना। और ये थिकनेस सेम है, कह रहा है थिकनेस सेम है, मतलब h1 h2 उड़ गया, पाई पाई उड़ गया। हेलो हाँ ना बोलो, कैन आई से r1 स्क्वायर अपॉन r2 स्क्वायर will become √2 by √1, that means r square is inverse to rho. Hello, are you getting it? हेलो, Yes, sir. अब हो गया। सेंट्रल एक्सिस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया मांग रहा है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क इज mr स्क्वायर बाई 2, बट मास तो दोनों का सेम है, और r स्क्वायर इज इनवर्स टू रो, r स्क्वायर इज इनवर्स टू रो ना, अभी तो किया देखो, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी इनवर्स टू रो, मतलब कहना है जिसका डेंसिटी ज्यादा है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा। हेलो 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 हेलो, यस और नो। तो जिस किसी का भी डेंसिटी ज्यादा है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाएगा, whatever they have given it to you, if ρ1 is greater than ρ2 ऐसा दिया रहेगा, तो I1 will be less than I2, ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। हेलो बाबा, यस और नो। Yes, Yes, sir. sir. Now question number 9 and 10, it is a request for everyone, भाई आप लोग वीडियोस देखो तो थोड़ा फास्ट होगा, वरना ये चैप्टर चलता ही रहेगा। Question number 9, particles of 1 gram, 2 gram, 3 gram, 100 gram are crept at marks 1 centimeter, 2 centimeter, 3 centimeter, 100 centimeter. Okay, find the moment of inertia about a perpendicular bisector of the scale. तो एक मीटर स्केल है जहां पर 1 ग्राम is kept at 1 centimeter, 1 gram 1 centimeter, 2 gram 2 centimeter, 50 gram 50 cm, यहाँ पर आएगा 49 ग्राम 49 cm, 51 ग्राम 51 cm। सिमिलरली कहाँ तक जाएगा ये, कहाँ तक जाएगा यार, 100. ओके 100 ग्राम 100 cm, सही है ना। हेलो, आई वांट टू फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस। अब मेरी बात सुनो, मजा आएगा, देखो अगर
moment of inertia about the central axis will become 50 gram into how, what is the general formula? मालूम है ना सबको तो यार, मैं 50 ग्राम से चालू करता हूँ, बीच से चालू करता हूँ. 50 ग्राम इंटू हाउ मेनी स्क्वायर? एक्सिस से किधर है? 0. 0 स्क्वायर प्लस इधर ध्यान दो, मेरी बात सुनो. Can I say it is 49 gram into how many square? 49 1. gram into 1 square, and 51 gram into how many square? 1 square. Can I write this as 49 plus 51 into 1 square? अरे बाबा बोलो yes or no? Yes, sir. एक तरफ राइट की तरफ, एक लेफ्ट की तरफ, दोनों को जोड़ी बनाकर मैं लिख रहा हूं. बराबर है क्या? अच्छा ठीक है. अब दूसरा वाला कौन सा रहेगा? उसके आगे वाला कौन सा रहेगा? 48 प्लस yes or no? Yes, sir. सेकेंड लास्ट कौन सा रहेगा? सेकेंड लास्ट 1 plus 99. हाँ 1 प्लस 99 रहेगा. इंटू कितना स्क्वायर आएगा? 49. और लास्ट वाला कौन सा रहेगा? 0 plus 100. हाँ 0 प्लस 100 इंटू 50 का square. 50 का स्क्वायर. आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस सीरीज. अब यहां पर देखो एक अच्छी चीज है, ये तो 0 हो गया, ये हो जाएगा 100 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 100 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 100 इंटू 3 स्क्वायर, और लास्ट वाला टर्म भी अगर आप देखो तो ये हो जाएगा 100 इंटू 50 का स्क्वायर. बराबर है क्या? हेलो अरे भाई यस Yes, और नो? ये हो जाएगा आई, ये 100 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 किधर का स्क्वायर? 50 का स्क्वायर. अब इसको सॉल्व करने के लिए एक मैथमेटिकल फॉर्मूला होगा आपके पास, दैट इज, डज एनीवन नो? n plus 1 to n plus 1 by 6. n plus 1 to n plus 1 divided by 6. बहुत सही है. तो n number of terms is 100, तो ये आगे वाला 100 into 100 into 100 plus 1, that is 101 प्लस कितना हो गया? 200 प्लस 1, oh sorry 50 है, sorry. हाँ ये 50 है, तो 50 into 51 100 101 डिवाइडेड बाय 6. सही है ना? ये आपको आंसर मिल जाएगा. गेटिंग इट? हेलो हेलो. Yes, sir. ठीक है, ये चीज क्लियर है. क्वेश्चन नंबर 10 पर आता है. जो आनंद जो आप खोली ना जो. Question number 10. If I1 is the moment of inertia of a thin rod about an axis perpendicular to the length and passing through the center of mass, and if I2 is the moment of inertia of the ring formed by the same rod. पहले I1 is the moment of inertia of a rod. पहले क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? पहले लाइन में there is a rod of mass m and length l. यहां पर moment of inertia will become ml square by 2. ये पहला पार्ट है. This is case 1. I2 is the moment of inertia of a ring formed by the same rod. तो ये रॉड जो लेंथ l था उसको हमने मोड़ दिया एक रिंग में of radius r. Can I say L is going to become 2 pi r? So R is going to become L by 2 pi. Hello beta, are you all there?
Yes or no? Yes, sir. ये चीज है. And I want to find moment of inertia of the ring about an axis passing center. मतलब यही ring लेके moment of inertia हमको तो मालूम है. This is mr square, but r यहाँ से l by 2 pi है. ये हो जाएगा m l square by 4 pi square. ये मिल गया. And they are asking what is the ratio of I1 to I2. Easy है एकदम. ml square by 12 और इसका m l square by 4 pi square. तो ये तो वैसे ही उड़ गया. ये हो जाएगा 4 pi square divided by 12. तो ये हो जाएगा pi square by 3. Yes or no? Yes, sir. So this finishes your introductory exercise based on 12.1. Hello. Based on moment of inertia. Clear है ना? Yes, sir. देखो बेटा फिर से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर वीडियोस देख के आते हैं, थियरी आपको आती रहेगी बराबर से, तो न्यूमेरिकल्स फटाफट निकल जाएंगे. ओके, एंड इफ यू डोंट वॉच अगेन इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम. ओके, ये चैप्टर खत्म होगा आपका 95% of the mechanics will get over based on rigid bodies and everything. Okay, so next time I hope that you all will watch lecture number 2 for angular velocity, and come, and torque also will be covered in the second lecture only. And Wednesday milte hain. Chalo, thank you, take care, bye. Bye, sir. Thank you. Bye, sir. Thank you. Bye sir. Bye.